قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ قبر پہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، قبر پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قبرستان میں قرآن کریم پڑھنا کچھ علماء کے نزدیک ثواب کا ذریعہ ہے، جبکہ کچھ اس عمل کو شرعی دلیل سے ثابت نہیں مانتے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ اور قرآن و سنت اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی ایک رائے کو امپوز نہیں کریں گے، بلکہ مختلف علماء کرام کے موقف انہیں کی زبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنے سے مردوں پر ثواب ہوتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث عالم قاری عبدالرحمن عابد صاحب کا موقف لیتے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ اور ہماری ماں عائشہ ام المومنین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ میں قبرستان جاؤں تو اب جو کچھ اسلام کے اندر پڑھنا جائز تھا، اللہ کے نبی پر لازم تھا بتانا کہ نہیں بتانا؟ ہاں؟ جو کچھ پڑھنا جائز تھا قبرستان جا کے، اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، آپ نے فرمایا یہ پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ قرآن پڑھنا نہیں بتایا۔ اگر قرآن پڑھنا، یہ اول آخر بقرہ کی پڑھنا، یا کوئی اور چاروں کول پڑھنا، یا فاتحہ پڑھنا وہاں جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ نبی نے نہیں بتایا تو میں کون ہوتا ہوں پڑھنے والا نبی کے بتائے بغیر؟ آپ کہیں گے قرآن ہی ہے، حرج کیا ہے قرآن پڑھنے میں؟ قرآن ہی ہے، قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے قرآن پڑھنے میں۔ یہی قرآن کا سورہ بقرہ کا اول آخر چاروں کل پڑھ کے آپ بکرے، چھترے، گائے اور مرغی کے گلے پر چھری چلا دے تو حلال ہو جائے گا، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ گالی نکالی کسی کو، حلال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ قرآن ہی پڑھا ہے، حرج کیا قرآن پڑھنے میں؟ قرآن چیزوں کو حرام کرتا ہے کیا؟ منکر ہو آپ قرآن کے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ قرآن ہی پڑھا ہے جی، قرآن ہی پڑھا ہے، حرام ہے اس بھی، اس کے باوجود حرام ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے اس موقع پر قرآن نہ پڑھا ہے نہ سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو حلال ہوگا، پورا قرآن پڑھ کے چھری پھیر دو گے تو حرام ہو جائے گا جانور۔ حالانکہ قرآن افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے، حلال اس سے ہونا ہے، قرآن پڑھنے سے حلال نہیں ہونا۔ یہ جگہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ دین میری اور آپ کی عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جو ہماری عقل کو اچھا لگے اس کو ہم دین بنا لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس کی حقیقت بہتر طریقے سے آپ کو واضح ہو سکے۔ قاری عبدالرحمن کا موقف آپ نے جان لیا ہے، جنہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب ایک اور اہل حدیث عالم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوست، رشتہ دار، ماں باپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو ہی وہ کرتے اس تک پہنچا دی جاتی ہے اور میت ویٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، جنت میں اعلیٰ درجات بلند ہونے کی دعا یہ کر سکتے ہیں۔ اور دعا کرنے کے جو آداب ہے اس میں سب کچھ آئے گا، اللہ کی حمد و ثنا،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद फिर दुआ वो आएगा। लेकिन खास तौर से मैयत पर सूरतों को पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब हयात में कई सहाबा की वफात हुई, शहीद हुए, कभी आपने कोई सूरत या आयत वहां नहीं पढ़ी, तो लिहाजा कुछ पढ़ना साबित नहीं सिवाय दुआ के। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। इनका मौक़िफ़ भी यही है कि आप कब्रिस्तान में सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ना कि कुरान की कोई मखसूस तिलावत। अब बरेलवी मुफ्ती अकमल कादरी साहब की वीडियो देखते हैं कि मुफ्ती अकमल कादरी साहब और बरेलवी उलमा का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। एक ही बहन ने फरमाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि अपने घरों में कुरान पढ़ो या सूरह बकरा पढ़ो, उसे कब्रिस्तान मत बनाओ, तो किसी ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि इससे मालूम हुआ कि कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि इसे कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में कुरान पढ़ो, कब्रिस्तान मत बनाओ। मालूम हुआ कि कब्रिस्तान हो तो उसमें कुरान चूंकि पढ़ना मना होगा, इसलिए घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ कहने का मतलब ही ये है कि जिस तरह कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना मना है, इस तरह मस्जिद में कुरान, घर में कुरान पढ़ना भी आपने रोक दिया है, तो इनमें मुशाबहत पैदा हो गई। देखिए, जिसने इस तरह का हदीस का मफहूम लेने की कोशिश की वो गुनाहगार होगा, ये सही मजमून नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसूद ये है कि जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे मौजूद होते हैं जो पहले जिंदा थे, इंसान थे, अब भी जी शऊर हैं, लेकिन अब वो खुद अमल करने पर कुदरत नहीं रखते हैं, तो कब्रिस्तान के अंदर कोई भी जितने भी इंसान लेटे हुए हैं वो अब कुरान पढ़ नहीं सकते हैं खुद, क्योंकि नेक अमल अब वो नहीं कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज किसी को इजाजत हो भी तो उससे उसके नामे अमाल में तरक्की नहीं होगी। तो ये कहना मकसूद है कि जिस तरह कब्रिस्तान में इंसान मौजूद होते हैं लेकिन वो कुरान पढ़ने पे कुदरत नहीं रखते हैं, तो घरों को ऐसा ना बना लो कि तुम भी घर में इंसान हो और इस तरह हो जाओ कि तुम कुरान ना पढ़ो, तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे लेटे और कुरान ना पढ़ सकते हो, लिहाजा कुरान पढ़ो। तो इसलिए ये मफहूम गलत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे को कब्रिस्तान जाए और एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 बार सूरह यासीन और एक रिवायत के मुताबिक 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब हासिल होगा। एक रिवायत में है कि जो कब्रिस्तान गया और उसने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो अल्लाह और उसको मुर्दों को बख्श दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तमाम मुर्दों की तादाद के बराबर नेकी अता फरमाएगा। तो इसलिए कब्रिस्तान में जाके जिक्र इलाही करना, कुरान पढ़ना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती अकमल कादरी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने से सवाब होता है या नहीं। अब एक और आलिम मदनी चैनल से जिनका ताल्लुक़ है, उनका नाम हसन अतारी साहब है और ये मदनी चैनल पर बैठकर सवालों के जवाब देते हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, और इसके लिए रिवायतें भी आई हैं, उलमा के अक़वाल भी मौजूद हैं कि इसका जो है वो मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, पढ़ी जा सकती है। शरह सुदूर के अंदर और कब्र वालों की 25 हिकायत जो अमीर सुन्नत की किताब है, दोनों के अंदर इस हवाले से हिकायत भी मौजूद हैं, रिवायत भी मौजूद हैं कि कब्रिस्तान जाकर कुरान पाक पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। पढ़ के जो है वो आप कब्र वालों को इसाले सवाब कर दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको इसका फ़ायदा हो जाए। मुफ्ती हसन अतारी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। इनके नज़दीक भी कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने से सवाब होता है। अब एक तीसरे आलिम जो कि बहुत ही मशहूर आलिम हैं, जिनका नाम पीर अजमल रज़ा कादरी साहब है, इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ऊपर पे बैठ के कुरान पढ़ना जायज़ है? लो दलील सुन ले, मिशकात की हदीस है, किताबुल ईमान में रसूल पाक पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन माज़ का जनाजा पढ़ाया, फिर हुजूर कब्र पे खड़े हो गए और नबी पाक तस्बीह पढ़ने लगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर हुजूर ने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर के चेहरे का अचानक रंग बदला, आंखों में आंसू आए, हुजूर ने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहते हुजूर ने जोर से पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता महबूब के चेहरे पे खुशी आने लगी। जब हुजूर फारिग हो गए, दुआ मांगी, निकलने लगे तो अर्ज की या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे भाई की कब्र तंग हो गई, मैंने तस्बीह पढ़ी है तो अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया है, अल्लाह ने उसकी कब्र को। तो फिर इसका मतलब है कब्रों पे खड़े होकर तिलावत करना, इबादत करना, उनके लिए कोई तस्बीहात पढ़ना, ये नबी पाक की सुन्नत है। तो बरेलवी उलमा का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। तीनों उलमा ने कहा कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना सवाब है। अब देवबंदी उलमा इकराम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
कब्र पे तिलावत का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज़ है, कब्र पे आप तिलावत कर सकते हैं, लेकिन मुसहफ को साथ ले जाना, कुरान के नुस्खे को साथ ले जाना जायज़ नहीं है। आप तिलावत करें, हदीस पाक में है इसके पाँव में फातिहा, इसके सराने में सूरत बकरा का शुरू वाला हिस्सा और इसके पाँव की तरफ से सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा आज तक उम्मत पढ़ती आ रही है, तो तिलावत तो जायज़ है। इनका मौक़िफ़ बरेलवी उलमा से मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ अलग है। आइए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कब्र पर कुरान पढ़ना बिदत है या जायज़? कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे जाना बिदत अमल है, क्योंकि कब्रिस्तान इबादत की जगह नहीं है। हाँ, आप कब्र पे गए, वैसे ही कब्र की ज़ियारत के लिए, कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए, आखिरत की याद को ताज़ा करने के लिए, तो वहाँ आलतू फालतू बातें करने से बेहतर है कुरान पढ़ लें आप। अब एक और आलिम शेख तौसीफ उर रहमान राश्दी साहब इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कुरान पाक में मुर्दों से कोई खिताब है? आप कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो कब्र वालों को कुरान कहता है उठो नमाज पढ़ो, मुर्दों उठो रोजा रखो। कुरान में जितना खिताब है वो जिंदों से है, जिंदगी में पढ़ते नहीं है। उर्दू डाइजेस्ट, उर्दू न्यूज, जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज, नसीम हिजाजी के नावल या VCR और फिल्में, इससे जान नहीं छूटती। जब मर जाते हैं तो फिर भी कहते मेरा प्यो मर गया है, बहन कब्र से कुरान से पढ़ छट, बोली कहता 2000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, तेरे प्यो कुरान मैं पढ़ावागा, बख्शावागा। कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं है, वो तो जिंदगी में अमल की बात करता है। रहा ये कि कब्रों पर बैठ के आपने सारे सवाब करना है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है, मौलवियों के पेट का धंधा। शेख तौसीफ उर रहमान राश्दी साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। इस्लाम की मुबारक 3 बेटियां जवान शादीशुदा आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर फौत हुई, आपने किसी का तीजा 40वां 10वां नहीं किया, बल्कि आप ये जो लोग कर रहे हैं इनसे सिर्फ सवाल पूछे कि नबी इस्लाम ने अपनी किस बेटी का तीजा 40वां 10वां किया, तो आगे उसकी जो शक्ल बनेगी ना, उससे आप आइडिया लगा लेंगे उसके पल्ले कोई शहर नहीं है। वो खुद ही कहेगा जी वो तो कोई इस तरह तो नबी इस्लाम ने तो नहीं किया। तो जो चीज नबी इस्लाम ने तालीम नहीं फरमाई वो आपने खुद से दीन के अंदर दाखिल की हुई है, और बाकी लोगों को इतना पाबंद कर दिया कि जो नहीं करवाता वो कहते हैं देखो जी इसका बाप मर गया, इसकी मां मर गई, इसने तो कुछ भी नहीं किया। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ था कि आप मुर्दों को जबरदस्ती अल्लाह से बख्शवाएंगे इसके जरिए। आपके पंजाब में ऐसी जगह भी हैं जहां पर 40 दिन के लिए खैमा लग जाता है कब्र के ऊपर, और शिफ्टों में हाफिज़े कुरान पढ़ रहे होते हैं, और उनका ये कीदा है कि भी जैसे ही लोग यहां से हटते हैं ना, फिर फरिश्ते आते हैं सवाल के लिए, वो कहते हैं 40 दिन आते रहेंगे, तंग आके छोड़ ही देंगे। हाँ ठीक है, वो 40 दिन पूरे करवा। तो तमाम उलमा इकराम का मौक़िफ़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप तक पहुँच चुका है। नाजरीन, ये थे मुख्तलिफ उलमा इकराम के मौक़िफ़ और उनकी दलील। अब तमाम पहलू आपके सामने हैं। किस आलिम की दलील आपको कुरान और सुन्नत के ज़्यादा करीब लगी, किस मौक़िफ़ ने आपको मुतमिन किया? फ़ैसला हम नहीं बल्कि फ़ैसला आप करेंगे। अपनी राय अदब के साथ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इख्तिलाफ़ी मसाइल में इखलाक और एहतराम सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर वीडियो मालूमात अफ़ज़ा लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग भी मुख्तलिफ़ दलीलों को समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।